Okay, beta. So let's start with the second chapter revision. That's basically the chemical bonding, and I'm going to highlight the core concepts जो आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए for to do the past paper for chemical bonding, and then we will do the recent year past paper of chemical bonding in a similar way we did for atomic structure. ठीक है? देखें इन द बेसिक केमिकल बॉन्डिंग जो सबसे पहले आपको रिवीजन रिक्वायर्ड है दैट फ्रॉम द गिवन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ molecule you should be able to identify कि either there is a covalent bond or either there is a ionic bond or either there is a metallic bond present in that molecule. ठीक है, यानी प्रॉपर्टीज गिवन होंगी तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ये बात अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि आयनिक कंपाउंड्स दे आर सॉलिड with high melting point and high boiling point. They are soluble in water and they conduct electricity not in solid form but in a liquid like the molten or in aqueous form. ये वो O levels वाली properties हैं, ठीक है, आप सबको आती हैं. In a similar way, covalent compounds are basically usually it could be solid, could be liquid, it could be gas. Okay, it could be solid, liquid, or gas. But they are non-conductor of electricity and they are insoluble in water. सही है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी कोवेलेंट कंपाउंड्स आपको पता चल जाएंगे. मेटल कंपाउंड्स आर सॉलिड and they have a high melting point and they are the conductor of electricity, good conductor of electricity in a solid form. ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा फर्क आएगा कि यस अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट जिनका होगा वो जाइंट उनका जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, वो कोवेलेंट कंपाउंड होंगे विद अ जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लाइक वो डायमंड ग्रेफाइट या SiO2 में से कोई एग्जांपल होगी. ठीक है, क्लियर. सो ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, यानी यू शुड नो, यू शुड बी एबल टू पिक the type of bonding on the basis of the properties given. So let's talk about the ionic compound, the compounds in which do you have a ionic bond present. तो ionic compound जितने भी होंगे आपके पास they all are solid with high melting point and boiling point. ठीक है, in a, this is the first property. They all are soluble in water. Solubility might be more or less. They are non-conductor of electricity in solid form. ठीक है, but they are good conductor in liquid form. ठीक है, molten और aqueous दोनों इसमें आ जाती हैं. क्लियर. इन अ सिमिलर वे इफ यू हैव अ metallic compound like the element with a metallic bonding, so हम metallic compound कह रहे हैं, लिख देता हूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, like anything with a metallic bonding, all the properties are same. ये वाली प्रॉपर्टी भी सेम होगी. uh, इसकी जगह पर लिखा होगा reacts with water but only the metals with higher reactivity. ये वाली प्रॉपर्टी चेंज होगी. ठीक है, गुड कंडक्टर इन सॉलिड फॉर्म, यहां से आपको पता चल जाएगा कि ये मेटल है. ठीक है बेटा. इन अ सिमिलर वे कोवेलेंट कंपाउंड्स आपके पास आएंगे. And now I'm talking about the simple covalent compound. ठीक है, not the giant molecular. Simple covalent compound. They could be mostly they are gas, but they could be liquid form में भी हो सकते हैं and they could be in a solid form भी है. ठीक है, they have a low solid with low melting point or liquid with the low boiling point. Clear. They are insoluble in water, तो इनकी प्रॉपर्टीज तो आयनिक कंपाउंड से बिल्कुल अलग है. इनसॉलेबल इन वाटर, अगर आपको सॉलिड दिया हुआ है विद लोअर मेल्टिंग पॉइंट तो वो कोवेलेंट सॉलिड ही होगा. सल्फर हो सकता है. ठीक है, एंड दे आर नॉन कंडक्टर इन एनी फॉर्म. ठीक है, क्लियर बेटा.
इन अ सिमिलर वे, अगर आपको अ जाइंट कोवलेंट कंपाउंड गिवन है, और एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसकी एग्जांपल्स बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड एग्जांपल्स क्या हैं? दे कुड बी डायमंड, इट कुड बी ग्रेफाइट, और इट कुड बी SiO2। ठीक है, क्लियर? इनकी सबसे पहली प्रॉपर्टी सेम है, सॉलिड विद वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्लियर? इनकी सॉलिबिलिटी इनसॉल्युबल इन वाटर। ना डायमंड ना ग्रेफाइट, इनमें से कोई भी, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड चाहे वो सिंपल मॉलिक्यूलर हो चाहे जाइंट मॉलिक्यूलर हो, कोवलेंट कंपाउंड की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। यस, इसकी हाइड्रोलिसिस हो सकती है, यानी इट माइट रिएक्ट विद वाटर, बट इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। रिएक्ट कर सकता है, वैसे इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, तीसरी बात, नॉन कंडक्टर और हो भी हो सकता है, और इट कुड बी अ कंडक्टर एज वेल। क्लियर? अगर नॉन कंडक्टर की एग्जांपल आ रही है बेटा, so I'll give the example of a diamond. It could be an example of a SiO2. But yes, graphite is basically a conductor of electricity because it has one unpaired electron. Clear? So this is it. You can identify the type of bonding present on the basis of the given structure. Clear? अच्छा, अब उसके बाद the basic definitions आप रिवाइज करेंगे। आयनिक कंपाउंड फॉर्म इज बेसिकली, आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है? इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between positive ion and a negative ion. ठीक है, and this is formed by the complete transfer of uh, electron from one atom to another atom, and it is mostly between metal and non-metal. Covalent compound is the electrostatic force of attraction present between two atoms, present between the nuclei of two atom and a bonded pair of electron. Covalent bonding में याद रखिएगा force of attraction होती है between the bond pair of electron and the nuclei of two atoms. अभी हम आगे इस पे बात करेंगे, ठीक है? So if they ask you, and the key next key point जो आपको याद होना चाहिए, वो आपको dot and cross diagram बनानी आनी चाहिए। ठीक है, वेरी रेयर, बट दे माइट आस्क यू अबाउट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ अ आयनिक कंपाउंड। किसी भी आयनिक कंपाउंड की आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड की डॉट एंड क्रॉस आप ड्रॉ कर लेंगे। की पॉइंट वही सारे क्वेश्चन जो अब तक पूछे जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से। यस, फॉर एनी आयनिक कंपाउंड नो नीड टू ड्रॉ द सर्किल, ओनली शो द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब एक जगह पर एक पास पेपर में, विच इज अ पास पेपर ऑफ अ recent year, they ask you about calcium chloride. So you know that in a calcium chloride, calcium is calcium 2 plus and chloride is Cl negative. तो इसकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाएंगे। वी ड्रॉ द कैल्शियम इन द मिडल, और फिर मैं सर्किल इसलिए बना रहा हूँ कि आई कैन मेक अ गुड सर्किल। आप लोगों से तो अच्छे बनते नहीं है, यहाँ तो ऑटो करेक्ट है। ठीक है, विद अ चार्ज ऑफ 2 प्लस। अभी मैं कैल्शियम पे बात करूंगा, ठीक है? एंड देन यू हैव अ क्लोराइड आइन with a charge of 1 minus, and you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electron of chloride and 1 electron of calcium. In a similar way, you can draw one chloride on this side, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 1 calcium। ठीक है, की बना देंगे जनाब। डॉट से आपने क्लोरीन को और क्रॉस से आपने कैल्शियम को रिप्रेजेंट किया, एंड दैट्स इट। इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब सवाल ये है कि डू वी हैव टू राइट 8 electrons इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ कैल्शियम? तो आंसर इज, नॉर्मली कैल्शियम 2 प्लस में जब आपके पास ये 2 प्लस बन गया तो आउटर मोस्ट शेल तो हो गया खत्म। नाउ अब जो आपके पास शेल है, दैट शेल कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द आउटर मोस्ट शेल आफ्टर द रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 प्लस बनने के बाद जो शेल बचेगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज कैल्शियम 2,8,2 होता है। 8 इलेक्ट्रॉन आपको ड्रॉ करने होंगे। डू नॉट लीव दिस वन एम्प्टी, कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो आउटर मोस्ट शेल तो एम्प्टी हो गया। नहीं, अगर एम्प्टी हो गया तो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो रहा है? बिकॉज बॉन्ड फॉर्म होता है टू कंप्लीट द ऑक्टेट। क्लियर? तो यहां पर की पॉइंट ये है कि बेटा यू हैव टू शो आउटर इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर
the removal of two electrons because it is a charge of 2 minus. ठीक है, so this is the dot and cross diagram. For the dot and cross diagram of a covalent compound, ये तो ionic compound की थी. For the covalent compound, मैं कुछ common examples आपको दे रहा हूँ बेटा, और आपको उन covalent compounds की dot and cross diagram बनानी आनी चाहिए. ठीक है, covalent compounds में जो common examples हैं, आप चाहे नेट से सर्च करें, चाहे जैसे भी सर्च करें, but should know how to draw how many bond pairs and lone pairs you have. Clear? So the molecules आर सम सिंपल मॉलिक्यूल्स तो आप ऑलरेडी जानते हैं, मैं सिर्फ उन कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स की लिख रहा हूँ जिनमें आपको प्रॉब्लम होती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, SO3, NO2, ठीक है, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इनकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एज मिनिमम यू शुड नो द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ दीज कंपाउंड. ये इन एडिशन है विद द सिंपल कंपाउंड जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे वाटर, अमोनिया, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, NH3. इनके अलावा दीज आर द एडिशन वन एंड यू मस्ट नो दीज डॉट एंड क्रॉस. ठीक है, अब आप जहां से भी जैसे भी इसको सर्च करके ड्रॉ करें, इतना मुश्किल नहीं, because these are the diagrams in which you might have a combination of a double covalent bond with a कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग, इस तरह की चीजें इसमें हो सकती हैं. ठीक है, क्लियर. इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी अगर पूछे जाएंगे तो वो खुद से आपको बताएगा कि दिस इज अ मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन डबल कोवलेंट, सारे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड है. अब आप इसकी डॉट एंड क्रॉस बनाइए, तो उसने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यू हैव टू ड्रॉ ऑल दी डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड एडजस्ट इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंगली. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई. नाउ एक क्विकली रिवाइज करते हैं, वैसे आप लोगों को ऑलरेडी ये बात पता है कि if we draw the dot and cross diagram of any molecule like H2O, तो आपके पास you should all know that oxygen is a central atom. ठीक है, and this oxygen have two lone pair of electron. आउट ऑफ सिक्स एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन. सो दिस इज अ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम एंड यू शुड नो दैट दीज आर द बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये बहुत पुरानी बात है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं. सो दीज आर द बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. और ये जो दूसरे वाले हैं बेटा, दीज आर बेसिकली द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. And we know that the how to find out the lone pair and a bond pair of electron, which is a very important task while you move further ahead towards the shape of a molecule. Now, इसके फौरन बाद मैं दोबारा से रिवाइज करूंगा द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. डेफिनेशंस मैं नहीं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ बिकॉज मेरा मकसद सिर्फ उन्हें रिवाइज करवाना है. सो यू शुड नो, जितनी भी डेफिनेशंस आ रही हैं आज, वो आपको सारी डेफिनेशंस याद होनी चाहिए. तो DEF मैं लिख रहा हूँ कि यू हैव टू मेमोराइज द डेफिनेशन व्हिच इज अ पार्ट ऑफ, एंड दे नॉर्मली आस्क दिस डेफिनेशन, द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, द पावर टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द पावर ऑफ एन एटम to attract bond pair of electron. ठीक है, क्लियर. द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये सही है. दूसरी बात ये कि द की पॉइंट ये याद रखिएगा, द ट्रेंड ऑफ सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ई एन, इसको पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कहते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियर चार्ज एंड न्यूक्लियर डिस्टेंस. ठीक है बेटा, न्यूक्लियर चार्ज के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डायरेक्ट रिलेशन है. जितना ज्यादा चार्ज होगा, न्यूक्लियर चार्ज होगा, उतना ज्यादा द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द एटम. ठीक है, क्लियर है बेटा. एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर डिस्टेंस, क्योंकि फोर्स ऑफ जो अट्रैक्टिंग पार्टिकल है वो तो बेसिकली प्रोटॉन्स हैं या न्यूक्लियस है. ठीक है, क्लियर. तो दिस दिस ट्रेंड ये भी MCQs में पूछा जा सकता है. सेम एज आयनाइजेशन एनर्जी, ये बिल्कुल वही है जो आयनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स हैं, एक्सेप्ट बस शील्डिंग की बात यहां पर हम नॉर्मली
नहीं करते, करना चाहें तो कर सकते हैं, बट नॉर्मली हम यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट की बात नहीं करते, विच इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन. सो सेम एज दैट्स व्हाई द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द ट्रेंड इज सेम एज आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, द ट्रेंड इज सेम एज आयनाइजेशन एनर्जी. अब ट्रेंड क्या है? ट्रेंड ये है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ periodic टेबल, लेफ्ट से राइट की तरफ, ई एन वैल्यू इंक्रीजेस. क्लियर? अब वो आपको दो एलिमेंट दे देगा, वन इज ऑन द लेफ्ट साइड, द अदर वन इज ऑन द राइट हैंड साइड. वो पूछेगा डिस्क्राइब द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है तो आप बोलेंगे लेफ्ट टू राइट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीजेस. उसका रीजन क्या होगा? ड्यू टू as the nuclear charge increases and the nuclear distance, which is atomic radius, remains nearly same. ठीक है बेटा, बिल्कुल वही बात आप कहेंगे. और अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं सेम नंबर ऑफ शेल्स होते हैं इसलिए ऐसा होता है. बिल्कुल सेम एक्सप्लेनेशन बट विदाउट ionization energy. Top to bottom in any group of the periodic table. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीजेस और इस डिक्रीज का रीजन क्या होगा? एज द न्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीजेस, ड्यू टू increase in number of shells which cancel out or which outweigh the increase in nuclear charge. जो प्रोटॉन नंबर की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर डिस्टेंस उसे कैंसिल आउट कर रहा है. Okay, beta. So this is important that you should know about the like the trend of electronegativity going down the group or across the period. ठीक है, इसी बेसिस पे आपको ये पता होना चाहिए कि the most halogens have the highest electronegativity value. We are not including noble gases because they are not making any covalent bond. सही है? Group one metals lowest. ठीक है, within halogens फ्लोरीन से आयोडीन तक ई एन डिक्रीजेस, क्योंकि गोइंग डाउन द ग्रुप द ई एन वैल्यू डिक्रीजेस. ठीक है, क्लियर? और अगर हम ग्रुप वन मेटल की बात करेंगे तो सोडियम से और पोटेशियम रुबीडियम तक ई एन वैल्यू डिक्रीजेस. डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, ये दोनों ग्रुप में मैंने डिक्रीजिंग ट्रेंड बताया. क्लियर? सो कैन आई से दैट F2 is the most electronegative. ठीक है, और रुबीडियम अगर आपको दिया हुआ है विच इज द लास्ट मेंबर ऑफ ग्रुप वन
हैज द स्मॉलेस्ट ई एन वैल्यू। ठीक है बेटा। लार्जेस्ट के लिए राइट मोस्ट टॉप पर जाएंगे, फ्लोरीन मिलेगा। स्मॉलेस्ट के लिए लेफ्ट मोस्ट यानी ग्रुप वन बॉटम पे जाएंगे, तो इट्स विच इज द लास्ट मेंबर। ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि आपको जो है वो पूरा पीरियोडिक टेबल में ना पूछा जाए, बल्कि दे गिव यू सम एलिमेंट्स और अ पार्शियल पिक्चर ऑफ अ पीरियोडिक टेबल एंड दे आस्क यू अबाउट दिस। ठीक है। तो ये आपको खुद सेंसिबली इसको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है। आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वी हैव अ पोलर एंड अ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। पोलर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। पोलर बॉन्ड इज बेसिकली अनइक्वल शेयरिंग। डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है। यहां पर आपके पास दोनों एलिमेंट में ई एन का सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिग्निफिकेंटली डिफरेंस। नॉन पोलर इक्वल शेयरिंग, जिनमें पोल्स नहीं बनते। ई एन covalent bond, equal sharing of electron in which there is a little or no difference of electronegativity, non-polar। अब अगर हमें याद रखना है तो हमें सिर्फ कुछ चीजें अगर हमें याद हो जाए तो हमारा काम चल जाएगा। पहले मैं बात करता हूं कि व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ अ non-polar covalent bond। So all simple diatomic molecule, all diatomic elements। ठीक है। ऑल डायटोमिक एलिमेंट्स में मतलब, इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डायटोमिक है ना, बिकॉज देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन टू एटम जो दोनों एक जैसे ही हैं, तो देयर शुड बी नो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्बन का बॉन्ड विद हाइड्रोजन। यहाँ पे वो एक टेबल मैंने आपको दिया था, आपके पास होगा कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर जो है वो 0.9, 0 से 0.9 तक है, तो आपके पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। 0.3 तक आई थिंक, और 0.3 या 0.4 तक, 0.4 से 0.9 होगा तो पोलर, और 0.9 से ज्यादा होगा तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सॉरी, एक की पॉइंट रह गया, मैं आपको बता दूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 4.0 होती है, उसका कोई यूनिट नहीं होता, इट्स नॉर्मली अ नंबर। ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 4.0, इससे बड़ी किसी की वैल्यू नहीं होती। क्लियर। So the carbon hydrogen bond, so in a similar way, the bond of carbon and hydrogen, ठीक है, बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इन दोनों की बात हो रही है। विद आइदर हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर इसमें आ जाते हैं। ठीक है। ऑल दीज बॉन्ड्स आर द पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। तो आपको नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड याद रखने की ऐसे जरूरत नहीं है, लिस्ट इज क्वाइट लेंथ, बट यू कैन मेमोराइज द पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन कौन से होते हैं? कार्बन का बॉन्ड विद एनी हैलोजन, सो क्लोरीन के साथ, कार्बन का बॉन्ड ब्रोमीन के साथ, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। ठीक है। कार्बन सल्फर बॉन्ड भी हो सकता है। This is partial positive, partial negative, partial positive, partial negative. In all these cases, the electronegativity of carbon and hydrogen is small, तो ये हमेशा पार्शियल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। एंड ऑल दीज आर द पार्शियल नेगेटिव वन, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है। सो यही लिस्ट आपके पास कार्बन हाइड्रोजन के लिए होगी। हाइड्रोजन
ब्रोमीन अगर आपसे पूछेगा कि विच बॉन्ड इज मोर पोलर, तो वो ट्रेंड के हिसाब से पूछेगा। ठीक है, ये बात भी मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। दे आस्क अबाउट विच बॉन्ड इज मोर पोलर, तो दे आस्क अबाउट द ट्रेंड। जैसे दे गिव यू द लिस्ट ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन। अब देखो एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है ना, हाइड्रोजन इज अ कॉमन फैक्टर, चेंज क्या हो रहा है फ्लोरीन से क्लोरीन। सो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, तो दिस इज द मोस्ट पोलर बॉन्ड। एंड एज गोइंग डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस, सो उनका डिफरेंस भी डिक्रीज होगा, और डिफरेंस डिक्रीज होने की वजह से दिस इज गोइंग टू बी लीस्ट पोलर। ठीक है बेटा। और याद रखिएगा कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स की वजह से आपके पास अनइक्वल शेयरिंग होती है और पार्शियल चार्जेस अराइज होते हैं। सही है। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, पोलर कोवलेंट, पोलर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को ही आगे लेके, मतलब बॉन्ड को यहाँ होल्ड करते हैं। ठीक है। एंड लेट्स टॉक अबाउट द सिग्मा एंड अ पाई बॉन्ड। एंड बिफोर द सिग्मा एंड अ पाई बॉन्ड, आपको थोड़ा सा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की बात दोबारा से रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है। आपको शेप ऑफ एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल आपको अच्छे तरीके से पता है। सो इफ देयर इज अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, इट्स अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सो एंड द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जब भी होगा तो ये कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड, चाहे वो कार्बन का हो, हाइड्रोजन का हो, किसी का भी हो। ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को ना हो। मेनली दिस कॉन्सेप्ट इज अबाउट कार्बन एंड द बॉन्डिंग इन कार्बन, लेकिन ये आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। सो इफ यू हैव अ कार्बन एंड हाइड्रोजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और कार्बन एंड कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। सो इन तीनों की बात हो रही है, सो ऑल दीज बॉन्ड्स आर बेसिकली द सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आपका आगे जाके और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में अगर आपको ऑर्बिटल ओवरलैपिंग बनानी है, लेट्स सपोज हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की, तो आप क्या करेंगे, आप दो सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन और क्लोरीन की ऑर्बिटल ओवरलैपिंग बनाते हैं, ताकि हमारा थोड़ा सा एक डिफरेंट एग्जाम्पल हमारे पास आए। यस, हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है, क्लोरीन का पी में है। सो इनकी जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगी उसमें आप हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल बनाएंगे विच इज स्फेरिकल, एंड यू ड्रॉ द पी ऑर्बिटल, बट आफ्टर ओवरलैपिंग आप थोड़ा सा इस पी ऑर्बिटल की शेप को डिस्टॉर्टेड बनाएंगे। ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड बेसिकली एस पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। क्लियर। मुझे कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल है, तो मैं कई बार ये बात आप लोगों को बता चुका हूं, एंड आई एम जस्ट सेइंग इट बैक अगेन। देखिए, दिस इज द पीरियोडिक टेबल। Group 1 and Group 2 elements are the s block element. They have outermost electron present in a s orbital. तो जो भी ग्रुप 1 ग्रुप 2 का मेटल होगा, एलिमेंट होगा, और हाइड्रोजन भी इसमें शामिल है। ठीक है, हाइड्रोजन हो या ग्रुप 1 ग्रुप 2, तो इनके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में होंगे। इन सिमिलर वे, इफ यू हैव एनी एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 3 ऑनवर्ड से लेके ग्रुप 7 8 तक, दे आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। अब कोई भी हो, आपसे सिलिकॉन का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पी में है, फास्फोरस का पी में है, दे आर द पी ब्लॉक एलिमेंट। और ये स्टार्ट होता है P1 P2 P3 P4, ऑक्सीजन P4, एंड देन फास्फोरस फ्लोरीन P5। यानी यहाँ पर P1 होगा, बोरॉन इज P1, दिस इज कार्बन इज P2, नाइट्रोजन P3 P4 P5, तो ये इस तरह से इंक्रीज होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं। अब हाइड्रोजन का अगर बॉन्ड वो पूछ रहा है सल्फर के साथ, तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज इन एस, सल्फर का पी में, तो sp ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, क्लियर। HCl के बाद अगर अब आपसे पूछा जाएगा कि यू हैव दिस बॉन्ड ऑफ कार्बन which is C C and all these are the hydrogen bond। अब कार्बन में आपको पता है कि हमने वो सारी कहानी पढ़ी थी कि एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाते हैं। तो एज द कार्बन इज मेकिंग ऑल सिग्मा बॉन्ड, तो हम कहते ये हैं कि दिस इज, पहले हम इन बॉन्ड्स को लेबल कर लेते हैं। सो ऑल दीज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, अभी लास्ट टाइम मैंने बॉन्डिंग में भी इसका रिवीजन किया था, carbon is basically sp3 hybridized।
अब वो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, लेकिन अगर आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे कि द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो ऑल दीज कार्बन मेकिंग ऑल सिग्मा बॉन्ड तो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड इज sp3 बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज sp3s बॉन्ड, ठीक है। तो अगर इसकी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग पूछी जाएगी तो एक की पॉइंट याद रखिएगा कि द सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ठीक है। इसलिए एल्केन की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम अगर आपको याद हो, सो वी नॉर्मली ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस, सॉरी, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम लाइक दिस। ये हम p ऑर्बिटल बनाते थे, हाइब्रिडाइज्ड और p ऑर्बिटल, वी ड्रॉ द कार्बन हेयर एंड देन वी ड्रॉ ऑल दीज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एज अ sp3s बॉन्ड, ठीक है, क्लियर। शेप थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है इफ यू लुक एट द बुक मार्किंग सेम और मेरे प्रीवियस नोट्स, लेकिन द की कॉन्सेप्ट यही है कि दिस इज बेसिक एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस डायग्राम। सो दिस इज बेसिकली sp3 bond and this is basically sp3s bond. Agar carbon is making all sigma bonds, so it's sp3 hybridized. In a similar way, if the carbon is making a carbon double covalent bond carbon, agar alkene bana raha hoga, sorry, alkene bana raha hoga, so yes, a pi bond is there. So each carbon is making 3 sigma and 1 pi bond. So यहाँ जो first bond form हुआ है, this is a sigma bond and this one is a pi bond. बाकी सारे कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड तो सारे के सारे ये आर बेसिकली द सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सो तो अगर कार्बन इज मेकिंग अप एनी वन पाई बॉन्ड देन इट इज बेसिकली ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज इफ मेकिंग वन वन पाई, ठीक है। कार्बन इज sp2 hybridized. If it's not making any pi bond, is sp3 hybridized. If it's making one pi bond, then it is sp2 hybridized. If it is making two pi bond, each carbon की बात हो रही है, ठीक है। If it is making two pi bond, then it is always sp hybridized. तो ये तो की पॉइंट हमने बहुत कई बार रिवाइज किया है, ठीक है, क्लियर। सो आपके पास ईच कार्बन इज मेकिंग 3 सिग्मा एंड 1 pi बॉन्ड। सो इनकी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में बस आपको एक दो चीजों का ख्याल रखना है बेटा। जब तक वो आपसे ये नहीं कहेगा कि ड्रॉ द ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम, तो जब तक आप कंप्लीट ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम नहीं शो करेंगे। एक रीसेंट ईयर का पेपर है और उस पेपर में उन्होंने कहा कि शो दी पाई बॉन्ड्स, ठीक है, शो दी पाई बॉन्ड्स। वेट फॉर अ व्हाइल बेटा, ठीक है। सो सॉरी आई वाज मेकिंग दिस डायग्राम। दिस इज बेसिकली ऑल दीज कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। आपको आपके पास ये डायग्राम हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। सो मैं एक सी डायग्राम ऐसे स्केच कर रहा हूँ ताकि जिन बच्चों को प्रॉब्लम है उनको रिवीजन मिल जाए, ठीक है। तो ये तो सारे सी एच बॉन्ड हो गए एंड सी सी बॉन्ड हो गया। नाउ इफ दे आस्क यू दिस सी सी बॉन्ड इज sp2 hybridized, ठीक है। And this one is sp2 bond, s orbital of hydrogen and sp2 orbital. Now if you have to show the orbital overlapping of a pi bond, then you draw one unhybridized p orbital here and one unhybridized dumbbell shape में here, ठीक है। And then you have to join it by a dotted line. So one electron of a pi bond is above the bond and one is below the bond. यही बात अगर वो एग्जाम में कहता है शो द पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट, शो द पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, तो आपके पास दोनों चॉइसेस हैं, लेकिन आई रिकमेंड कि आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड शो करें, ठीक है। ये कुछ डोनट की फॉर्म में लिखा होता है बट एज यू कैन इफ यू ड्रॉ इट लाइक दिस, मिनिमम रिक्वायरमेंट यही है एंड यू विल गेट द मार्क फॉर इट। Show the pi bond, then you have to draw this. It asks you, okay, this is the diagram. On this diagram below, show the orbital that overlap during the formation of a pi bond. So as you can see,
टर्म यूज हो गई ऑर्बिटल ओवरलैप की, तो आपको एक पी ऑर्बिटल ड्रॉ करना है बेटा, लाइक दिस ऑन द सेम डायग्राम। ये ब्लैक वाली ड्रॉ हुई भी आई होगी एग्जाम में, ठीक है। क्लियर, एंड देन ज्वाइन देम बाय अ डॉटेड लाइन। तो दिस इज बेसिकली द ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम। वो ये वाली डायग्राम जब वो कहे आपसे शो द पाई बॉन्ड, लेकिन एक रिसेंट ईयर में ऐसा हुआ कि दे शो द पाई बॉन्ड बट दे ड्रॉ द ऑर्बिटल ओवरलैपिंग इन अ मार्किंग स्कीम, तो उसको आप इग्नोर कर दें, क्योंकि उससे पहले प्रीवियस जितने ईयर्स आए हैं उनमें आपको याद होगा हमने पास पेपर में किया है कि यही वाली डायग्राम ड्रॉ होती है व्हेन दे शो द ऑर्बिटल व्हेन दे आस्क टू शो द पाई बॉन्ड, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब याद रखिएगा, कार्ब इफ carbon is making 4 sigma bond, all sigma bond, it's always sp3 hybridized. If carbon is making 3 sigma and 1 pi bond, then it is sp2 hybridized, 4 bond पूरे हो रहे हैं। 2 sigma and 2 pi bond, then it is sp hybridized. Clear? In a similar way, अगर वो आपसे कार्बन की बात नहीं करता, ठीक है, दिस इज फॉर कार्बन, if they give you any other molecule, सही है, sometime they ask you about nitrogen, तो हम नाइट्रोजन के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। वी यूज द सेम कॉन्सेप्ट फॉर नाइट्रोजन एज वेल। क्लियर? लेट्स सपोज दिस इज द मॉलिक्यूल नाइट्रोजन, डबल कोवलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है, एंड यू हैव लेट्स सपोज वन हाइड्रोजन, सॉरी दिस वन, अभी हम सिंगल की एग्जांपल, ठीक है। सो यू कैन सी एंड लोन पेयर्स ऑन द नाइट्रोजन एटम, यू कैन सी नाइट्रोजन मेकिंग ऑल, तो आप इसके लिए भी आप sp3 की ही टर्म यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट की डिटेल हमें रिक्वायर्ड नहीं है, बट कॉन्सेप्ट ये है इन सिलेबस कि इफ यू शुड नो द ऑर्बिटल ओवरलैपिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन इन डिटेल फॉर कार्बन, इफ दे आस्क एनीथिंग रेदर देन कार्बन, देन इट मस्ट बी ट्रीटेड इन अ सिमिलर वे एज कार्बन, सही है। तो अगर आपके पास आपसे पूछा जाएगा जनाब यू हैव नाइट्रोजन, कार्बन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन, सही है ना, इनका बॉन्ड है, तो अब अगर आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाएगी यहाँ पर, जर्नल हाइब्रिडाइजेशन, विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज टेकिंग प्लेस हियर, तो आप बोलेंगे द हाइब्रिडाइजेशन इज sp, because there is, you can see 1 sigma and 2 pi bond. In a similar way, if nitrogen making a double covalent bond with carbon or any other element, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ या कार्बन के साथ, अगर नाइट्रोजन जो है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे, तो आप बोलेंगे नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सही है। की पॉइंट, सिमिलर वे जैसे कार्बन को डील किया है, बिल्कुल उसी तरह से आप उससे डील करेंगे, ठीक है। क्लियर? लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स द शेप ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, क्विकली हम इसका एक रिवीजन करते हैं, एंड आई एम जस्ट गोइंग, जितना मिनिमम, दिस इज अबाउट द शेप एंड अ बॉन्ड एंगल, इफ यू रिमेंबर मोस्टली स्टूडेंट हैविंग इशू इन दिस वन, तो भाई जितना मैं आज आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपने इतना याद रखना है, 3 बातें आपको पता होनी चाहिए टू कवर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। द फर्स्ट थिंग, you should know how to locate the central atom, द वन विच इज लेस इन नंबर, और अगर दोनों एक एक हैं तो जिसपे लोन पेयर है वो सेंट्रल एटम कंसिडर किया जाएगा, जैसे H और Cl है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों एक एक बार हैं, लेकिन क्लोरीन इज एन एटम विच हैव अ बॉन्ड पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो वो एक सिंगल एटम, वो सेंट्रल एटम कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। क्लियर? अब आपके आपसे अब बहुत सिंपल वे में बात करते हैं, in a way that if you have a element like BeCl2, so you have Be at the center and you have 2 chlorines, सही है बेटा। so this is the case of 2 bond pair, आपको पता चल गया सेंट्रल एटम पे 2 बॉन्ड पेयर हैं और 0 लोन पेयर है। सेंट्रल एटम हैव 2 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर। जब भी ऐसा केस होगा, द शेप इज ऑलवेज 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर के साथ शेप लीनियर,
एंड द बॉन्ड एंगल इज 180। बस इतना याद रखना भाई। ठीक है, टू बॉन्ड पेयर, जीरो लोन पेयर, शेप लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। इन अ सिमिलर वे, if I give it example, second example, which is AlCl3, थ्री बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर की एग्जांपल कर रहे हैं। तो AlNCl3, यू कैन सी क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर्स हैं, बट क्लोरीन के लोन पेयर्स को हमें कंसिडर नहीं करना भी, और only have to consider the central atom, which is aluminum is in this case. So if we talk about aluminum, so it is three bond pair, zero lone pair। ठीक है, तो थ्री बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर के साथ द शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर और ट्राइंगुलर प्लेनर, एंड द बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। आप आपसे जो भी, अब अगर कोई ग्रुप थ्री का एलिमेंट होगा मेकिंग थ्री बॉन्ड पेयर जीरो लोन पे, आपको पता चल जाएगा इट इज इन अ ग्रुप थ्री, तीनों इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, तो थ्री बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर का केस है। तो आपके पास शेप ट्राइगोनल प्लेनर या ट्रायंगुलर प्लेनर होगी, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा। तो ये तो दोनों आसान हो गए। इसके बाद आगे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, four pair of electron, let's take an example like CH4। ठीक है, तो कार्बन एंड मेकिंग फोर कोवलेंट बॉन्ड, तो हाइड्रोजन, ठीक है, द बॉन्ड एंगल इज 109.5। ठीक है, एंड द शेप इज टेट्राहेड्रल। ये शेप और ये बॉन्ड एंगल कब होगा? अच्छा, टेट्राहेड्रल थ्री डी आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए, तो एक दफा आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे हाउ टू ड्रॉ द थ्री डी शेप ऑफ अ टेट्राहेड्रल, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फोर बॉन्ड पेयर्स, जीरो लोन पेयर। ठीक है, अब अगर इसी में एक लोन पेयर आ जाता है, मैं वो मिनिमम मॉलिक एग्जांपल्स हैं। ठीक है, नाइट्रोजन NH3, सो इफ यू हैव अ वन बॉन्ड पेयर, ऊपर वाले को आपने लोन पेयर में कन्वर्ट कर दिया, एंड रिपल्जन की वजह से अब बॉन्ड एंगल आपके पास कम हो जाएगा और 107 डिग्री का हो जाएगा। दिस इज द केस ऑफ थ्री बॉन्ड पेयर एंड वन लोन पेयर, एंड वन लोन पेयर। ठीक है बेटा, इन अ सिमिलर वे H2O को आप ट्रीट करेंगे। अब देखो H2O तो आसान है ना, क्योंकि आप कई बार कर चुके हैं वो। H2O के बजाय H2S पूछ लेगा आपसे, गोइंग टू बी द सेम थिंग। आप थ्री डी भी ड्रॉ कर सकते हैं, नॉर्मली बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा, 104.5 डिग्री हो जाएगा, और ये कहलाती है पिरामिडल शेप, और ये आपके पास जो शेप है ये कहलाएगी नॉन लीनियर। ठीक है, नॉन लीनियर, ये केस है टू बॉन्ड पेयर और टू लोन पेयर। ठीक है, और ये शेप हमेशा होगी जब ग्रुप सिक्स का सेंट्रल एटम होगा। ठीक है, सेंट्रल एटम ग्रुप सिक्स का होगा और वो टू कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहा होगा। क्लियर? एक की पॉइंट और याद रखिएगा, वो की पॉइंट क्या था कि कार्बन डबल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन और एनी डबल बॉन्ड कंसिडर्ड एज सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना, वाइल प्रिडिक्टिंग द शेप हम डबल कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कंसिडर करेंगे। क्लियर? सो ये फोर पेयर, इसी फोर और थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की एक एग्जांपल देखिए, मैं आपको बताता हूँ। इफ आई आस्क यू कि जनाब दिस इज द मॉलिक्यूल,
ठीक है बेटा। अब देखिए, इफ दे आस्क यू अबाउट दिस बॉन्ड एंगल, क्लियर? तो दिस कार्बन, मैं हाइड्रोजन लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है बेटा। नाउ दिस इज अ कार्बन मेकिंग फोर कोवलेंट बॉन्ड, फोर बॉन्ड पेयर, जीरो लोन पेयर, तो बॉन्ड एंगल आपके पास होगा 109.5। इफ दे आस्क यू अबाउट दिस बॉन्ड एंगल, कार्बन इज मेकिंग थ्री बॉन्ड पेयर, है ना, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कंसिडर करेंगे, सो द कार्बन इज मेकिंग थ्री बॉन्ड पेयर एंड जीरो लोन पेयर, थ्री बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर के साथ बॉन्ड एंगल होता है 120। इन अ सिमिलर वे, इफ दे आस्क यू अबाउट दिस, तो यहां पर भी आपको नजर आ रहा है कि दिस इज अ कार्बन जिसके अराउंड आपको एंगल चाहिए थ्री बॉन्ड पेयर, दिस इज अगेन 120। क्लियर? इन अ सिमिलर वे, अगर इस मॉलिक्यूल में मैं थोड़ा सा चेंज लेके आ जाता हूँ, ठीक है, चेंज कैसे लेके आता हूँ, हाइड्रोजन ओ एच, ठीक है, एंड इफ आई आस्क यू अबाउट दिस बॉन्ड एंगल, सो ऑक्सीजन ग्रुप सिक्स का मेकिंग टू कोवलेंट बॉन्ड, तो बॉन्ड एंगल आपके पास होगा 104.5। बिकॉज उसने नहीं लिखा, मैंने आपको नहीं दिया, बट देयर आर टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। ठीक है बेटा। I hope this point is clear, so you can identify the bond pair and lone pair present. बस एक दो शेप ऑफ मॉलिक्यूल में एक लास्ट बात है, उसे भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देर आर टू मोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग, एंड विच इज द केस ऑफ अ PCl5। ठीक है, फॉस्फोरस इज इन अ ग्रुप 5 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो आपके पास फॉस्फोरस, और अगर 5 क्लोरीन के साथ बॉन्ड्स बना रहा है, तो इसकी शेप जो है वो कुछ इस तरह की है। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर पे ऊपर नीचे क्लोरीन लगे हुए हैं चारों तरफ। बहुत रेयर है, कम पूछा जाता है। मोस्टली आर द क्वेश्चन फ्रॉम द थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो यहाँ पर याद रखिएगा ये 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, और ये वाले जो बॉन्ड एंगल यहाँ से यहाँ, इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होते हैं, दैट्स बेसिकली द 90 डिग्री बॉन्ड एंगल, एंड द शेप इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और एक आपसे शेप पूछी जाती है, दैट्स द लास्ट। बस शेप और बॉन्ड एंगल में बेटा सिर्फ इतना याद रखिएगा। देखिए, अब अगर वाटर है, वाटर आपके पास है, तो H2S शुड बी ट्रीटेड इन अ सिमिलर वे। जैसे वाटर है, NH3 है, ठीक है, तो PCl3 शुड बी ट्रीटेड इन अ सिमिलर वे। कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही बात है। तो इस तरह से थोड़े थोड़े चेंज ला के वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन की जगह फॉस्फोरस की एग्जाम्पल यूज कर रहे होंगे, ऑक्सीजन की जगह सल्फर, और ऐसा भी हो सकता है कि सल्फर के बजाय सिलीनियम की एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ, विच इज बिलो सल्फर इन अ सेम ग्रुप। ठीक है, तो हाइड्रोजन मेकिंग टू कोवलेंट बॉन्ड, टू हाइड्रोजन विद एनी ग्रुप सिक्स एलिमेंट। ठीक है, क्लियर? SF6 ऑक्टाहेड्रल शेप होती है, आपको आपको याद होना चाहिए, सल्फर विथ फ्लोरीन। एंड ऑल दीज बॉन्ड एंगल आर 90 डिग्री। भाई अब इससे ज्यादा, देखिए, आई थिंक मुझे पूरा दोबारा पढ़ाने में इट टुक मी लाइक 15 मिनट्स, ऐसे ही है ना, यहाँ से। तो आई डोंट थिंक सो कि इट गोना टेक लाइक मोर देन हाफ एन आवर जस्ट टू मेमोराइज दिस स्टफ, सिर्फ इतना। प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि आप लोग यू जस्ट मेमोराइज H2O, एंड व्हेन दैट सिंपली चेंजेस टू H2S, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। H2SE से या H2S से चेंज कर लिया, तो एवरीथिंग जस्ट जस्ट सिंपली वैनिश। भाई याद आपने ऐसे रखना है कि ऑक्सीजन ग्रुप सिक्स, इट कुड बी एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप सिक्स विद टू हाइड्रोजन, एंड इट्स गोइंग टू बी द सेम थिंग। ठीक है जी।
अच्छा, अब यहाँ पर एक लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं बिफोर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट इज पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स, पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो भी अपलोड की हुई है, विच इज पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स, द लार्जेस्ट ओवरऑल डायपोल एंड ऑल दिस स्टफ, ठीक है। There are two conditions for the compound being polar, and both of these condition must be fulfilled. Polar bond present होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, शेप नॉन सिमेट्रिकल होनी चाहिए। नॉन सिमेट्रिकल शेप दो रीजंस की वजह से हो सकती है। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, ओके, और अगर लोन पेयर नहीं है तो एटम्स विद डिफरेंट साइजेस, ठीक है। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, एटम विद डिफरेंट साइजेस आर अटैच्ड, क्लियर। सो द शेप इज गोइंग टू बी अ नॉन सिमेट्रिकल शेप, ठीक है। तो इन दोनों बातों में से, इन दोनों बातों का प्रेजेंट होना जरूर, ऐसा नहीं कोई किसी एक का। पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, शेप जो है वो सिमेट्रिकल है, पोलैरिटी गेट कैंसिल आउट, ठीक है। इन सिमेट्रिकल शेप्स रीजन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इन सिमेट्रिकल शेप्स द पोलैरिटी gets cancelled out, and there is no net overall डायपोल, ठीक है। अब आपसे पूछेगा जनाब कि आप बताइए एच CH3Cl पोलर है या नॉन पोलर है, तो आपने बोला कार्बन नॉन पोलर हाइड्रोजन बॉन्ड, नॉन पोलर हाइड्रोजन बॉन्ड, बट दिस इज अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। Polar covalent bond is present, and you can see the central atom carbon do not have any lone pair of electron present। तो दूसरी चीज चेक करेंगे, तो तीन तो सिमिलर साइज के हाइड्रोजन लगे हुए हैं, बट एक क्लोरीन लगा है जिसका साइज डिफरेंट है। तो दिस फुलफिल द क्राइटेरिया, एंड दिस इज अ पोलर कंपाउंड, एंड ऑल पोलर कंपाउंड्स हैव अ डिफरेंट कंपाउंड, ठीक है। और इसका रीजन क्या बताएंगे आप? बिकॉज द शेप इज नॉन सिमेट्रिकल। क्यों नॉन सिमेट्रिकल है? बिकॉज एटम्स ऑफ डिफरेंट साइजेस आर अटैच, ठीक है। आपसे बोलेगा भाई कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, हमने लिखा है ना लिस्ट में पोलर में, देखिए कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, कहाँ गई ये? बट CCl4 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एक्सप्लेन व्हाई। तो आपने बोला जनाब, if we draw C with Cl, yes, all these bonds are the polar covalent bond, ठीक है, in which the chlorine is partial negative and the carbon is partial positive, ठीक है। लेकिन the polarity getting cancelled out due to the symmetry in the shape, है ना। सेंट्रल एटम कार्बन है, कोई लोन पेयर नहीं है, सो यस आप बोलेंगे बिकॉज द शेप इज सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल शेप का स्टेटमेंट क्या देंगे? जो अभी मैंने आपको दिया है कि द पोलैरिटी गेट कैंसल, सिमेट्रिकल, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, clear? So this is a typical non-polar molecule because the shape is symmetrical, the polarity get cancelled out, clear? और अब बस लास्ट बात आज के लिए करते हैं, we'll be continue it in the next session। largest overall dipole, ठीक है, largest overall dipole, ओके बेटा। लार्जेस्ट ओवरऑल डायपोल में अब बस मैं आसान अल्फाज में आप लिखूं, यू whenever you see one side partial negative charges above or below, left or right, ठीक है, other side partial positive, when we clearly see
one side partial positive and one side partial negative, then it has the largest overall dipole. ठीक है, बहुत सारी एग्जांपल है पास पेपर में. Carbon double bond oxygen with one hydrogen and with one hydrogen. You can see this is partial positive and this is partial negative. And you can clearly see that because of this area is basically the negatively charged area. है ना, ये वाला side पूरा negative है, above side because of oxygen is present. So this is basically the partial negative area, and this side is positive. You can clearly see two poles, है ना? So these type of molecule have the largest overall dipole in comparison to the other molecules. अगर आपको example दी जाएंगी बेटा, तीन example इस तरह की होंगी कि you have chlorine here, you have chlorine here, you have hydrogen here, you have hydrogen here, and if you have to compare it with this molecule, ठीक है, chlorine, hydrogen, hydrogen. So this one is partial positive, partial negative, partial positive, partial negative, partial negative, partial, placing all these charges. Okay. In this one, you can see this side negative, ऐसे ही mark कर लेंगे आप. This side negative. In this one, this whole area seems to be a negative charge, and this carbon hydrogen bond तो neutral है ना, मतलब hydrogen non-polar bond है. This side is positive. So you can see this molecule clearly have one side negative and the other side positive. So this one have a larger overall dipole. ठीक है, बस आप क्या करना है, आपने सिर्फ देखना है कि जिस जगह पर अ पॉजिटिव चार्ज इज बेसिकली अ नेगेटिव चार्ज इज इन अ सेंटर एंड द अदर चार्ज इज सराउंडिंग इट, ठीक है, और वो स्प्रेड हुआ है, तो उसका डायपोल कम होगा, उसमें कम पोल्स क्रिएट होंगे, उसका लार्जर नेट ओवरऑल डायपोल कम होगा. ठीक है, क्लियर? तो आई एम जस्ट कीपिंग इट टिल हियर फॉर टुडे. नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे.